Well, it had to happen, and it finally happened today. When Rahul Gandhi threw a full toss talking about how he saw young men in Varanasi drunk, dancing and passed out on the streets, it was understood that day that this is a slight. This is a comment that the Prime Minister would not let go of. After all, it wasn't just about the men being drunk and dancing that Rahul Gandhi spoke of. It was the young men of Varanasi, the Prime Minister's own constituency, that he was referring to. And that, he said, is also symbolic of how the country's future was going down the drain. The Prime Minister naturally didn't let go of that. Today, while in Varanasi, while in his constituency, the PM went after Rahul Gandhi in particular and INDI in general for all his comments about nashedi young men. He said this is symptomatic of the reaction of people, of politicians who are entitled and frustrated when they find themselves rejected by the electorate. When the people simply do not respond on voting day, these politicians turn their anger upon the voters themselves. आज जब यूपी बदल रहा है, जब यूपी के नौजवान अपना नया भविष्य लिख रहे हैं, तब ये परिवारवादी क्या कर रहे हैं? मैं तो इनकी बातें सुनकर हैरान हूं। कांग्रेस के शाही परिवार के युवराज का कहना है और चौंक जाएंगे आप। कांग्रेस के युवराज परिवार ने क्या कहा? वो कह रहे हैं और काशी की धरती पर आके कह रहे हैं, काशी के नौजवान, यूपी के नौजवान नशेड़ी है। ये कैसी भाषा है भाई? मोदी को गाली देते देते तो इन्होंने 2 दशक बिता लिए, लेकिन अब ईश्वर रूपी जनता जनार्दन पर, यूपी के नौजवानों पर ही ये लोग अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं। जिनके अपने होश ठिकाने नहीं है, वो यूपी के मेरे काशी के बच्चों को नशेड़ी कह रहे हैं। अरे गौर परिवारवादियों, काशी का, यूपी का नौजवान तो विकसित यूपी बनाने में जुटा है। अपना समृद्ध भविष्य लिखने के लिए परिश्रम की पराकाष्ठा कर रहा है। इंडी गठबंधन द्वारा यूपी के नौजवानों का अपमान कोई नहीं भूलेगा। वाराणसी में देखा मैंने, रात को बाजा बज रहा है, ठहर जा, बाजा बज रहा है, वहां पे शराब पिए, यूपी का भविष्य रात को शराब पिए नाच रहा है, डांस कर रहा है। In fact, while the Prime Minister's response on the drunk young men comment got the maximum attention, he also responded to another comment made by Rahul Gandhi without actually taking his name. In Varanasi itself, the Prime Minister responded to what Mr. Gandhi had said when he asked a reporter for his caste, following which the hapless man was roughed up. Today, when the PM was at the Sant Ravidas Mandir, when he paid respect, after that, he spoke and called out the habit of some politicians to divide in the name of caste. आप शिव प्रसाद जी हैं, आपके मालिक का क्या नाम है? आपके मालिक का क्या नाम है? क्या नाम है? नाम बताओ, नाम बताओ। कोई मारो मत यार, मारो मत उसको, मारना नहीं है, मारना नहीं है, नाम बताओ उसका। आज देश के हर दलित को, हर पिछड़े को एक और बात ध्यान रखनी है। हमारे देश में जाति के नाम पर उकसाने और उन्हें लड़ाने में भरोसा रखने वाले इंडी गठबंधन के लोग दलित, वंचित के हित की योजनाओं का विरोध करते हैं। और सच्चाई ये है कि ये लोग जाति की भलाई के नाम पर अपने परिवार के स्वार्थ की राजनीति करते हैं।
So the big question is, the comments were by Rahul Gandhi, but after the PM has picked it up, he has decided to not just target Mr. Gandhi himself, but has dragged in INDIA as well. So is the alliance now going to face the blowback for what Rahul Gandhi said? Is this really symptomatic of frustration and fury? Is that what one is to read into this angry tirade? Let's take that question across to the guests. Joining us now, Lokesh Jindal, political analyst, national spokesperson, Samajwadi Party, Manoj Yadav, Harshvardhan Tripathi, senior journalist. But Shehzad Poonawala, I want to actually show you what Rahul Gandhi said in response. He didn't directly respond to the Prime Minister, but he said, in ठेठ बनारसी अंदाज, in fact himself, he said, लखनऊ से लेकर प्रयागराज तक पुलिस भर्ती पेपर लीक को लेकर युवा सड़कों पर हैं और वहां से मात्र 100 किलोमीटर दूर वाराणसी में प्रधानमंत्री युवाओं के नाम पर युवाओं को ही बरगला रहे हैं। ठेठ बनारसी अंदाज में कहें तो मोदी जी नानी को ननिहाल का हाल सुना रहे। देखिए, आजकल तो राहुल गांधी को कोई उनका हाल सुना दे, और इतनी हिम्मत ना कांग्रेसियों में है और ना समाजवादी पार्टी में है। बताइए, पूरे उत्तर प्रदेश के युवाओं को अपमानित करने के बाद आज उनको पेपर लीक नजर आ रहा है। तो राजस्थान में तो 15 पेपर लीक हुए थे, वहां पर तो पूरा चुनाव इस मुद्दे पर हुआ, और उस समय पर तो जादूगरी के बारे में और कोई नहीं, सचिन पायलट दूसरे युवा कहते थे। उस युवा को भी अपमानित किया, राजस्थान के युवाओं को भी अपमानित किया। और जब देश में आज एक कड़ा कानून बना है तो उनको पेपर लीक का याद आ रहा है, अच्छी बात है। परंतु मैं पूछना चाहता हूं कि इन मुद्दों पर बात करें ना। बात किस पर हो रही है कि पत्रकार की जाति क्या है, और पत्रकार का नाम था शिव प्रसाद यादव। अब बताइए कि शिव प्रसाद यादव को पिटवा दिया, और जाति की बात कौन कर रहा है? वो लोग कर रहे हैं जिनके राजनीतिक डीएनए में पहले 51 में सेंसस रोकने का कुकर्म, 70 से 80 और 80 से 90 के दशक में मंडल को रोकने का कुकर्म, पार्लियामेंट में खड़े होकर कहना कि मंडल जो है वो गलत है, ये कुकर्म। उसके बाद जिस प्रकार से ओबीसी एक अध्यक्ष बन गया बाय मिस्टेक, सीताराम केसी, उसके धोती कुर्ते को फाड़ने का कुकर्म, प्रधानमंत्री ओबीसी समाज से जब बनते हैं तो उसको भी गाली देने का कुकर्म, और जाते जाते जिस प्रकार से कुकर्म लेते जाते हुए एक बात इंटरेस्टिंग आज पता चली है, ऐश्वर्या राय जिन पर इन्होंने टिप्पणी की कि नाचने वाली है, वो भी जिस समाज से आती है कर्नाटका में, वो भी ओबीसी समाज है, कर्नाटका बंड समाज से। इसीलिए तो मैं आज सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं, बाकी तो छोड़ दीजिए, क्या विश्लेषण करेंगे। पर आज हमारे हाथ बहुत एक प्रवक्ता विद्वान लगे हैं, वो विद्वान प्रवक्ता से मैं पूछना चाह रहा हूं, सुनिए। कभी कहेंगे उधर देखो भैया अमिताभ बच्चन नाच रहा है, वो देखो भैया उसके साथ ऐश्वर्या राय नाच रही है। अब मुझे बताइए, संदेश खाली पर तो जो अनुसूचित जाति की महिलाएं, उस पर तो चुप रहना इनका स्वाभाविक है। वहां की महिलाओं पर कुछ नहीं बोलेंगे वोट बैंक के चलते, पर कम से कम अपने ही घर के, अपने ही सांसद की जो पुत्र वधू है, उस पर तो कहने का कुछ कष्ट कीजिए मनोज यादव जी, और इधर उधर मत भागिए। राहुल गांधी ने जिस प्रकार का अपमान उत्तर प्रदेश के युवाओं का किया है, और जिस प्रकार का अपमान उन्होंने ओबीसी जाति से आने वाले एक पत्रकार का किया है, और संयोग से ओबीसी परंतु देश की गर्व ऐश्वर्या राय बच्चन का क्या है, जो आपके परिवार से जुड़ी हुई है, उसके ऊपर बोलने का कष्ट कीजिए। बताइए मनोज यादव जी, क्योंकि आज हमला प्रधानमंत्री ने आप पे भी किया है कि यूपी के युवा का अपमान ना सिर्फ राहुल गांधी कर रहे हैं बट INDI कर रही है फ्रस्ट्रेशन में। मनोज यादव, देखिए, आपको नमस्कार, आपके सारे साथी पैनलिस्टों को मेरा नमस्कार। अब मैं एक अनुरोध सबसे पहले कर लूं, शहजाद जी आप बहुत अच्छे वक्ता हैं, प्रवक्ता हैं, फ्रस्ट्रेट मत होइएगा और थोड़ा रिलैक्स होकर बात करिएगा, क्योंकि मैं आपसे दूर बैठा हूं। जिस दिन हम दोनों स्टूडियो में बैठेंगे उस दिन खूब तेज चिल्लाना, और आपको मेरा भी टेम्परामेंट और आवाज की जो फ्रीक्वेंसी वो पता चल जाएगी। इसलिए मैं काफी दूर हूं, 500 किलोमीटर आपसे, तो चिल्लाइएगा मत, रिलैक्स होकर बोलेगा, ठीक है। मैं अपनी बात शुरू करता हूं। बिल्कुल सही बात कही नरेंद्र मोदी जी ने, और राहुल गांधी पे जो व्यंग किया है और जो बातें कही हैं कि राहुल गांधी जी इस देश के तमाम सारे नौजवानों को और प्रदेश के नौजवानों को दारू पीने वाला कह रहे हैं, तो एक सवाल शहजाद पूनावाला जी योगी आदित्यनाथ से भी पूछ लेते कि पिछले 3 सालों में सबसे ज्यादा रेवेन्यू दारू बेच के ही योगी आदित्यनाथ ने कमाया। 65,000 करोड़ से ज्यादा का रेवेन्यू एक साल में इस उत्तर प्रदेश की सरकार ने, शायद देश का सबसे बड़ा रेवेन्यू है दारू से अर्न करने वाला स्टेट। कौन सा? उत्तर प्रदेश। कहां? जहां पे रामराज स्थापित कर चुकी है बीजेपी। क्यों?
दारू पे कंट्रोल क्यों नहीं कर रहे हो? अगर कोई नेता विपक्ष का सवाल उठा रहा है कि नौजवान हमारा दारू की तरफ जा रहा है, आपको याद होगा उड़ता पंजाब कैसे नशे की चपेट में आ गया, उस पे तमाम सारे सवाल बीजेपी के लोगों ने पूछा, और वहां की सरकार चाहे कांग्रेस की हो या आप पार्टी की हो, बीजेपी के लोगों ने इतने जबरदस्त तरीके से उनको घेरा। तो अगर राहुल गांधी जी ने उत्तर प्रदेश में घेर लिया तो फिर शहजाद पूनावाला को छोड़ो, मोदी जी को इतनी तकलीफ क्यों है? और जाति जात की बात करते हो नरेंद्र मोदी जी, अपनी जात क्यों बदली आपने? और इस देश में अगर हजारों सालों तक जाति के नाम पे अत्याचार हुआ तो क्या ये झूठ है? किसी जाति के नाम पे मंदिर में नहीं घुसने दिया गया? किसी की जाति के नाम पे करके बात करते हैं, क्योंकि हम दो मुद्दों को कन्फ्लेट कर रहे हैं। फर्स्ट थिंग दैट यू सेड, मनोज यादव, फर्स्ट थिंग दैट यू सेड इज अबाउट, ये कोई यूथ का अपमान नहीं है, ये सच्चाई बयां की जा रही है। दिस इज द ट्रूथ that there is large sale of alcohol. There is a problem in Uttar Pradesh, and to try and conflate it as men of UP, youth of UP are being insulted is disingenuous. सबसे पहले लिकर की चिंता किसको है? एक तो इनकी साथी है 1 पे 1 फ्री देने वाली आम आदमी पार्टी, पर बहरहाल उसको छोड़ देते। 2012 में समाजवादी की सरकार आई ना, तो जिस समूह के साथ आप शायद उस समय थे, इंडिया टुडे, उसने न्यूज रिपोर्ट छापा है, यूपी गवर्नमेंट टू विड्रॉ ऑल केसेस अगेंस्ट लिकर बैरन पॉन्टी चड्डा। इनकी प्राथमिकता में क्या था? और लिकर से रेवेन्यू आता है, बिल्कुल भाई बात सही है, पर कैपिटल लिकर से रेवेन्यू जितना साउथ के और कई और स्टेट्स का आता है उतना यूपी का नहीं है। तो ये डेटा भी आपको लेकर बैठना चाहिए। परंतु दूसरी बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने ऐश्वर्या जी के सवाल को गोल कर दिया। युवाओं का पूरा अपमान करना, यह तो ऐसी बात हो गई ना कि सरकार को बोल देते, मोदी जी को बोलते, वैसे भी तो कब्र खुदेगी, हिटलर की मौत मरेगा, ये सब तो बोलते ही हैं, उनके ओबीसी समाज को भी गाली दी, पर चलिए छोड़ देते, वो आउट ऑफ सिलेबस हो जाएगा। आप, मेरी आवाज आपके कान तक पहुंचे ना पहुंचे, परंतु रेवांत रेड्डी ने कहा था कि ये कुर्मी समाज जो है ना, उसका डीएनए जो है, हमारा डीएनए उससे बेटर है, तेलंगाना डीएनए ठीक है, ये डीएनए खराब है, ये आवाज पहुंची थी। हमने तो मोहन यादव को बनाया मुख्यमंत्री, आपने रेवांत रेड्डी को बनाया। इसीलिए मैं कहता हूं समाजवादी पार्टी के होनहार प्रवक्ता, कम से कम एक का सवाल का तो जवाब दिया करो भाई। ओबीसी समाज से आने वाले पत्रकार को पीटा गया, उस पर कुछ तो बोलिए। Okay, before we come to the caste, because again, like I said, these are two separate issues. Let's just settle this Nashedi debate once and for all, because I think it's quite charming. Harshvardhan Jain, Lokesh Jindal also come into this. Everyone's like, suddenly we have turned into a public broadcaster service. Rahul ji was raising awareness about the problem of alcoholism. So, and sometimes because such arguments are given the kind of research that I have to do, let me actually put some data out. So, Lokesh Jindal and Harshvardhan ji, please pay attention to this data. We actually went and saw what the National Family Health Survey between 2019 and 2021 says about average consumption of alcohol across the country. The maximum happens in Arunachal Pradesh, 52.7%. The second happens in Telangana, 43.3%. Sikkim 39.8%, Andaman and Nicobar 39.1%, Manipur 37.5%. Actually, Uttar Pradesh, जहां पे हर किसी को नशेड़ी बोला जा रहा है, is at 31, rank 31, with 14.6% alcohol consumption. Madhya Pradesh is at rank 27 with 17.1% alcohol consumption, and Haryana is at rank 29 with 16.1 alcohol percent consumption. So, Lokesh Jindal, if somebody, agar public interest mein people have to be called nashedi, then maybe Rahul Gandhi could have said that in Telangana when he was campaigning there. Last year only he was campaigning there. He could have gone and told youth of Telangana कि आप तो सब, मैंने देखा तेलंगाना में 43.3% लोग जो हैं दारू पी करके वहां पर सड़क पर लेटे हुए हैं। लोकेश जिंदल. Good evening, Padmaja. Padmaja, the point is that in 2017, when the Yogi Adityanath government came to power, the excise revenue generation was 14,000 crores. And in 6 years, with a compounded average growth rate of about 20%. Okay. अब आपके पास कुछ और बोलने को नहीं है. Now you respond to this data. आप मनोज जी का ही पॉइंट रिटरेट क्यों कर रहे हैं? I am telling you that Telangana has 43.3% alcohol consumption, sir. So if really you want to tell people, आप नशेड़ी हो, मत नशा करो, go and say that in Telangana where you are in government now or where you were campaigning last year. Padmaja, I don't understand on what basis is the UP government promoting consumption of liquor. Do you know the e-lottery scheme of the UP government? Sir, are you not able to listen to what I'm saying? I am showing you comparative consumption of alcohol, sir.
Do you realize what a facile discussion we're having? And I'm sorry I had to put out this data because the facile argument had to be countered with actual data. No, you want to say that because there is larger liquor consumption in other states, so you can promote liquor consumption in Uttar Pradesh? What form of logic is this? My argument is simple and it's straightforward, that why is the state promoting consumption of liquor, whereas if you look at the e-lottery system, if you look at the excise revenue that has taken place, more than threefold rise, all these are showing that with more than 98 distilleries, UP has become the liquor capital of India. It has surpassed Karnataka. If this trend carries on, if this trend goes on in a period of time, UP will be facing a massive social problem of what is happening in Punjab. If he's raising this issue, rather than answering it, you are simply questioning Rahul Gandhi. How dare he raise this issue? I don't understand. Why if you're raising the issue, raise the issue where it's actually needed to be raised. If actually that was the intent, I again want to underline that to argue this is about raising awareness. Punjab has 22.8% liquor consumption, sir. At a time when Charanjit Singh Channi was the chief minister and before that Captain Amrinder Singh was leading the Congress government, you had high rates of liquor consumption in Punjab and high rates of drug consumption as well. But only 30 seconds because I want to bring in Harshvardhan ji after this. हालांकि आपने जो पर कैपिटा कंजम्पशन बताया, that should have settled the debate, but because they were quoting revenue, उत्तर प्रदेश का किसी ने बताया 60-65 हजार करोड़ है, तेलंगाना जिसका पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश का 1/6 है, उसका रेवेन्यू 30,000 करोड़ है, और कांग्रेस के कॉन्स्टिट्यूशन में है कि वी शुड अबॉलिश द लिकर. तो आप एक प्रस्ताव दीजिए कि तेलंगाना में लिकर प्रोहिबिट करेंगे, कांग्रेस की जहां सरकारें हैं लिकर प्रोहिबिट करेंगे. एक बार प्रस्ताव दे दीजिए. और वो समाजवादी, हालांकि इनका कोई यूपी में आने का कोई 25-30 साल तक कोई प्लान नहीं है लग रहा, पर आप भी बोल दीजिए कि अगली बार जब भी आएंगे 2047 के बाद, तो उस समय हम लोग बैन कर देंगे. तब तक रहेंगे भी नहीं, पता नहीं. हर्षवर्धन जी, we can keep going round in circles saying कि किसका कितना है, किसका नहीं है, data nobody is going to answer. My basic point is, politically, does it make sense to go to the voter and say कि भाई तुम नशेड़ी हो, तुम सड़क पे लेटे रहते हो, आओ मेरे को वोट दे दो? पद्मजा, मुझे लगता है कि आपने बहुत सीरियस टॉपिक पे बहस की और अच्छा है कि लोग उस पे डेटा लेकर आए कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा लिकर रेवेन्यू है, और अच्छा किया कि आपने बता दिया, क्योंकि ये आंकड़े में बताता कि उत्तर प्रदेश कहां खड़ा है पर कैपिटा कंजम्पशन के मामले में या रेवेन्यू के मामले में, लेकिन आपने ग्राफिक्स में बताया तो बहुत सुंदर तरीके से समझ में. ये इशू ही नहीं है. मनोज यादव जी शराब पीते हैं या हर्षवर्धन त्रिपाठी शराब पीते हैं, ये इशू नहीं है भैया. वैसे मैं नहीं पीता हूं, मैं नहीं जानता हूं मनोज जी पीते हैं नहीं पीते, मैं नहीं पीता हूं, मैं कभी शराब नहीं पीता. लेकिन अगर मैं पीऊं या मनोज यादव पिए या कोई भी पिए ना पिए, ये किसी का विषय नहीं हो सकता है. अगर मैं शराब पी के किसी का नुकसान कर रहा हूं, और मैं तो बिहार में लागू है या गुजरात में लागू है, मैं किसी मतलब प्रतिबंध के तो पक्ष में ही नहीं हूं, किसी चीज के प्रतिबंध के पक्ष में नहीं. मेरा ये मानना है कि समाज अपने आप तय करता है. जो राहुल गांधी ने बोला है उस पर बहस होनी चाहिए. वो कह रहे हैं मैं आया, मैंने देखा बाजा बज रहा है, लोग डांस कर रहे हैं, और उत्तर प्रदेश का भविष्य ऐसे ही शराब पीकर नाच रहा है या उसी तरफ जा रहा है. कैसी बात कर रहे हैं वो? मतलब राहुल गांधी, जिनको उत्तर प्रदेश की जनता ने, जिनको और जिनके परिवार को बरसों बरस बिना काम किए, और फिर से मैं दोहरा रहा हूं, बिना काम किए अमेठी रायबरेली में सर माथे बिठा कर रखा, हारे क्या वो उत्तर प्रदेश के भविष्य को ही नशेड़ी बताने लगे? ये विषय ही नहीं कि कहां कितना कंजम्पशन होता है. मैं फिर से कह रहा हूं, बहुत से लोग हैं जो शराब पीते हैं लेकिन वो किसी का नुकसान नहीं करते. कोई बिना पिए ही अगर बौरा जाए, उसका दिमाग खराब हो जाए, होश उसके गड़बड़ हो जाए, तो फिर तो वो गड़बड़ है ना. और मुझे लगता है कि राजनीति में जब आप मुख्य विपक्षी पार्टी हो या प्रमुख नेता हो, और उस यात्रा का नाम क्या है? भारत जोड़ो न्याय यात्रा. समझिए इसको. किसी नेता ने ऐसी गलती नहीं की, कोई नेता. बहुत सी चीजें हम कहते हैं ना, समाज सुधार करना एक प्रक्रिया है. अगर आपको लगता है तो आप कहते हैं भाई कि हमारे यहाँ ये चीजें उससे हो रही हैं, यहाँ इस तरह की कानून व्यवस्था की दिक्कत है, कोई किसी के साथ गड़बड़, ऐसे आप कहेंगे उत्तर प्रदेश का भविष्य वो इस तरह से नशे में हो गया है. मैं भी उत्तर प्रदेश का हूं और हमें तो नहीं दिखता कि उत्तर प्रदेश का भविष्य कोई गड़बड़ है. हमें यह भी नहीं दिखता कि इस तरह से कोई बहुत शराब पी के हमारे राज्य में कोई लोग घूम रहे हैं.
और जो लोग पंजाब का उदाहरण देते हैं, दरअसल कई बार तथ्य न जानना, किसी को सुन लिया उसी को दूसरी डिबेट में दोहरा देना। वहां पर जिस ड्रग्स की बात हो रही है, ड्रग कार्टेल की बात हो रही है, जिसकी वजह से शराब की बात नहीं हो रही, वहां जो दूसरी तरह के खतरनाक नशे होते हैं उनकी वजह से जो नौजवान है वो उसका भविष्य चौपट हो रहा है। ये एक अलग डिबेट है, लेकिन वहां भी ये करते हुए लोग बचते हैं। राहुल गांधी ने जो किया है पॉलिटिकली बहुत इमेच्योर और इनकरेक्ट है, उत्तर प्रदेश को अपमानित करने जैसा। और मैं फिर से कहूंगा, उनके परिवार को उत्तर प्रदेश ने बहुत सम्मान दिया। मनोज जी, इफ यू वांट टू रेज अवेयरनेस, देयर इज वन वे ऑफ सेइंग इट कि ये प्रॉब्लम है एंड वी विल सॉल्व दिस। क्या आपकी सांसद है, उनकी पुत्र वधू के ऊपर एक कमेंट किया जा रहा है, क्या आप लोगों को प्रॉब्लम होती है या आप भी कॉन्टेक्स्ट ढूंढते हैं? मैं आपसे बड़ी अनुरोध के साथ इस बात को कह रहा हूं कि मुझे बीच में मत टोको। मुझे मालूम है मैं बोलूंगा, आप अगर किसी और महिला के बारे में रैंडम टिप्पणी करेंगे तो मैं टोकूंगा। मुझे बोलने दो। नहीं, आप कंगना के बारे में नहीं बोलेंगे। मैं कुछ नहीं टिप्पणी कर रहा हूं, मैं हकीकत बात बता रहा हूं। मैं नहीं, क्यों नहीं बोलूंगा? क्या तय करेगी बीजेपी, तय करेगी या चैनल तय करेगा कि मैं क्या बोलूंगा? ये सभ्यता डिक्टेट करेगी कि किसी भी महिला के बारे में कि उसके बारे में नहीं बोला और फलां के बारे में। आप क्यों उसको ला रहे हैं इन द डिस्कशन? सर, टॉक अबाउट द टॉपिक। एक मिनट पद्मजा, प्लीज लिसन मी। जर्सी गाय बोलने के लिए परमिशन ली थी क्या? Okay, I think this is the point where we end this conversation because things can only go downhill from here. Manoj Yadav, I give you a platform. You say things which are unrelated, that is also okay. But I am not going to allow for personal comments to be made. Thank you very much, gentlemen, for joining me.